we arrange Gurukul training by some esteemed guest or member. And today we are really honored to have one such eminent speaker among us for the session today, Neeta Singalji. Uh, I'm very much excited for the session, friends, and I'm sure all you all must be. Before I proceed to introduce our speaker today, I would like to welcome all the visitors also in the room, and for all of our guests, I would quickly like to tell you about this Sampark and the Sampark Sakha initiative. So, friends, Sampark is a first of its kind Indian non-profit organization of members, for members, and by members. It facilitates networking and training of MSMEs and startups. Sampark family is a family of 250 plus members today, and they all are participating through 5 different works operational in the city of Nagpur. Uh, those are respectively Chhatrapati Shivaji Maharaj Sampark Work, Maharana Pratap Sampark Work, Rani Lakshmibai Sampark Work, Surya Sampark, Vardhaman Sampark Work, and there is one more upcoming, that is Abdul Kalam Sampark Work. Friends, more than 4 crores of business has been already exchanged on this platform in last 1.5 years. And friends, do take a note that currently membership drive is on for Sampark's upcoming work, Abdul Kalam Sampark Work. So do recommend people who you feel can be benefited from this platform. I would also like to tell you in brief about Sampark Sakha initiative. As we all know, friends, that this COVID pandemic has hugely impacted our economy, and this has translated into deep emotional, psychological, and economical impact for many around us. So, friends, Sampark Sakha initiative is an initiative to help such people to deal with this stress and come out of it. Friends, today's session is one such attempt under Sampark Sakha initiative, and I would like to briefly introduce our speaker, Neeta Singalji, today. I'm able to see Neeta ji on camera. We welcome you, Neeta ji. Let me introduce you. Yeah. So friends, Neeta Singalji is a spiritual e-commerce entrepreneur, and that's an interesting term I found, friends. Spiritual e-commerce entrepreneur. Uh, After completing her education from Delhi University in Bachelor of Science, followed by a Master of Computer Application, Neetaji moved towards spiritual entrepreneurship. Friends, she is a pioneer and founder of Rudraksha Ratna Science Therapy, which she did with 17 years of rigorous research, friends. And with astonishing 20,000 plus testimonials shared by people coming from all spheres of life, this therapy has proven to be a great success in the physical and mental well-being of individuals. Friends, Neetaji is also founder of Chakra Yoga Foundation and recognized as a renowned and leading authority in the field of chakras. She is also managing director of Rudra Center, a leading e-commerce company dealing in her spiritual and religious domain. Friends, friends, I would like to request everyone to please put your microphone on mute mode so that we'll be able to hear the voice smoothly. So thank you very much for doing that, friends. I will resume with my introduction of Neetaji. So friends, I was talking about Neetaji that she is also managing director of Rudra Center, which is a leading e-commerce company in the spiritual and religious domain. Friends, under her able leadership and guidance, Rudra Center has grown exponentially both in India as well as abroad, driven by almost 100 plus employees. It was established in the year of 1997, and Rudra Center is the oldest ISO 9001 certified Rudraksha organization in the world. Today, Rudra Center has produced a portfolio of over 40,000 plus products, friends, and with the 22 distributors spread across world, Rudra Center is committed to provide high quality, authentic Rudraksha beads, gemstones, yantras, Siddha Parat,
puja services and samagri, vastu items, and more, all across the globe. Friends, Neetaji is a very dynamic speaker, thinker, writer, and spiritual. She leads a very busy life, traveling, giving workshops, seminars, and conferences. She has her 500 videos on these very interesting topics. Her counseling sessions, friends, has benefited CEOs, business people, working women, housewives, celebrities, and many people from all walks of life. She has been honored with several awards, of which probably I won't be able to mention about all of them, but just to mention a few. She has been awarded with Best Research Award in Rudraksha Ratna Science Therapy by eminent Big Research Business and NDTV Profit. She's also been awarded with Jyotish Shiromani Award by All India Business Development Association and also Jyotish Vagdevi Award by International Astrological Association. And apart from that, she has been awarded with many more awards, friends. I think the words we won't, the time won't be sufficient to, cover the complete introduction of Neetaji. She is such the person of such a comprehensive introduction. But I hope I was able to introduce a brief about her, friends. Now I extend a warm welcome to Neetaji from all of us here at Sampark. And I would like to thank her for agreeing to deliver this session for all of us here now. I would request Neetaji now to start the session. So over to you, Neetaji. We are all excited to hear you. Thank you so much. Thank you, Sampark, for having me here. And thank you, the directors of Sampark, Kailash Motwani, and thank you, support director Reet Rupani. And I cannot thank enough my elder sister Shreya Nath, director. We've been talking since very long. Ms. Shreya Nath has been telling that I should come and I should give a session to her Sampark fellow men. And today I got the opportunity, so thank you so much. तो सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि आप क्या प्रेफर करते हैं, मैं हिंदी में बोलूं कि इंग्लिश में बोलूं? So I would like to see some chat, जैसे कि हम थोड़ा कनेक्ट हो जाएं, because ये जो सेशन नीता जी, आपके लिए, हाँ जी, नीता जी, we have mixed audience. There are people who understand Hindi purely. There are people who understand English, Hindi both. तो जिनको सिर्फ हिंदी आती है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी. अच्छा, तो जितना ज्यादा आप हिंदी में बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा. बट बहुत अच्छा के हिसाब से आप जितना हो सके, ठीक है? जरूर जरूर. थैंक यू सो मच. मोस्ट वेलकम. सो ये जो समय है, अभी देखिए हम सब एक कॉमन दौर से निकल रहे हैं. ओके, एवरीवन इज गोइंग थ्रू सिमिलर प्रॉब्लम्स टुडे, फर्स्ट टाइम इन several decades. हम सब इस पैंडेमिक से घिरे हैं और इसके कारण जो पूरा जो एटमॉस्फेयर है ना, बहुत ही अनिश्चितता मींस अनसर्टेनिटी का एटमॉस्फेयर हो गया. एवरीवन इज स्कैर्ड, मेरा क्या होगा? एक तो पहले तो लोगों को दौड़ थी अपनी सेटलमेंट की, स्टेबिलिटी की, करियर की. सब लोग फ्यूचर की तरफ देख रहे थे कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो. एवरीवन वाज मेकिंग गोल्स एंड टारगेट्स. पर अब ये जो दौर आ गया है कि सब लोग जो हैं अचानक आके सडनली स्टिल हो गए. ये क्या हुआ? इसमें एक चीज ऐड हो गई है, हेल्थ. राइट? अब हमें ये नहीं पता कि हमारी हेल्थ कैसी रहेगी और बहुत सारी इमोशनल डिसऑर्डर्स, ये सब हमारे अंदर क्रीप हो गया है. पर देखिए, जैसे कहते हैं ना, कुछ भी नहीं होता जब तक उसकी मर्जी नहीं होती. तो हमें समझना चाहिए कि एवरीथिंग दैट हैपेंस इज बिकॉज ऑफ अ डिवाइन प्लान. ये समय मुश्किल लग रहा है, पर एक समय होगा जब हम रियलाइज करेंगे कि इस समय से भी बहुत सारा एवोल्यूशन हुआ, बहुत सारे रियलाइजेशन हुए और अल्टीमेटली जो है हमारी प्रोग्रेस ही हुई है. आज
अगर हम दुनिया को अपनी दो आंखों से देखें, इफ वी सी द वर्ल्ड फ्रॉम अवर टू आईज, तो क्या है, हमें दुनिया जो है काफी डिफिकल्ट लग सकती है, काफी स्ट्रेसफुल लग सकती है। पर जिस दिन हम दुनिया को अपने तीसरे नेत्र से, और तीसरा नेत्र क्या है, हर चीज का अर्थ देखो, हर चीज से देखो इससे रिजल्ट क्या निकला। ये मत देखो कि हमने दही को मथा, ये देखो उसमें से क्या मक्खन निकला। अगर आप मथने को देखोगे, आप देखोगे कि उसमें कितनी तकलीफ हुई, पर जिस दिन आप मक्खन को देखोगे, आप देखोगे कि मक्खन भी तो इसी दही से निकला। सो आज हमें जो लाइफ है उसको एक अलग नजरिए से देखना है, और तभी हम स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। अगर आप लाइफ को इतना सीमित कर दोगे कि लाइफ इज जस्ट अबाउट सर्वाइवल, मेरी हेल्थ ठीक रहे, मेरे बच्चे ठीक रहे, मेरे पास पैसा हो, राइट, अगर हम लाइफ को इतना सीमित वे में देखेंगे तो हमें भय होगा। पर जब हम लाइफ को एक बड़े रूप में देखेंगे कि हमारा जन्म ही क्यों हुआ है, क्या आप ये क्वेश्चन पूछना शुरू आपने कर दिया है कि व्हाई वी आर बोर्न? और जिस दिन आप ये क्वेश्चन पूछोगे, आपके अंदर उत्तर आना शुरू हो जाएगा। तो मैं अपनी वर्कशॉप्स में हमेशा सबसे पहले क्वेश्चन पूछती हूँ, व्हाट डू यू थिंक इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन बर्थ, राइट? तो मेरे को बहुत सारे अलग अलग जवाब मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम लोग आए हैं अपने कर्म को कंप्लीट करने। तो मैं कहती हूँ कर्म आपने कौन से बर्थ में पैदा किए थे, तो उस बर्थ में आपका जन्म क्यों हुआ? तो कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग आए हैं कि दुनिया को कुछ देने के लिए, वी हैव कम टू गिव समथिंग टू द वर्ल्ड। और कुछ लोग कहते हैं कि हम इस दुनिया को एक्सपीरियंस करने आए हैं। पर देखिए, ये तीनों चीजों के बारे में अगर हम सोचते हैं कि हम एक्सपीरियंस करने आए हैं, तो दुनिया में दुख भी बहुत है। जो भगवान बुद्ध है ना, जब उन्होंने बहुत साल मेडिटेट किया और मेडिटेट करने के बाद उन्हें रियलाइजेशन हुआ बोधि ट्री के नीचे, और आपको पता है 3-4 दिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्हें समझ नहीं आया कि मैं लोगों को ये सच कैसे बताऊं कि दुनिया क्या है। पर अल्टीमेटली जब तुम्हें कोई ज्ञान प्राप्त होता है ना, तो उसका प्रकाश तो आपको देना पड़ता है। तो 3-4 दिन के बाद वो आए और उन्होंने लोगों को जीवन का पहला सत्य बताया। और आपको पता है पहला सत्य क्या है? लाइफ इज सफरिंग, जीवन दुखम। आप सोचोगे वो खुश है, मैं ही सफर कर रहा हूं, वो गलत है। हर इंसान जो जी रहा है वो दुखी है। उसके बाद उन्होंने दूसरा कहा, ये दुख के कारण क्या है? एक तो आप इस दुनिया से अटैच्ड हो, आपके अंदर इग्नोरेंस है कि ये दुनिया क्या है, और आप भावों में दुनिया के साथ जुड़े हुए हो। कभी आप प्लेजर के पीछे भाग रहे हो और कभी आप दुख से दूर भाग रहे हो। तो क्योंकि आप राग द्वेष में फंसे हुए हो, आप दुखी हो। और तीसरा उन्होंने बताया, आप इससे बाहर आ सकते हो। और इससे बाहर आने का जो मार्ग है, उन्होंने कहा एक 8-fold मार्ग है, जिसमें आपको 8 टाइप के नियम को पालन करना है, या 8 टाइप के ज्ञान को प्राप्त करना है। हर जितना भी रियलाइज्ड मास्टर है वो अपने तरीके से ज्ञान देता है। कोई भक्ति योग का मार्ग करता है, कोई कर्म योग का मार्ग करता है, कोई ज्ञान योग का मार्ग करता है, कोई ध्यान योग का करता है। हम जो है चक्र योग में, हम आपको प्राइमरीली ज्ञान के द्वारा आपको बताते हैं कि जीवन क्या है। अगर आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, आप जीवन को सही नजर से देख पाओगे, और जब सही नजर से देख पाओगे, आप देख पाओगे कि जीवन जो है एक्चुअली जीवन का एक ही सत्य है, और वो है यू आर मोर।
आप इस जीवन में उसको पहचानने आए हो। यू हैव कम टू रियलाइज हिम। आप इस जीवन में अपने माध्यम से अपने अंदर ईश्वर को पहचानने आए हो। यू हैव नॉट कम मियरली फॉर सर्वाइवल। उससे फर्क नहीं पड़ता आपने कितने साल आप जिए, उससे फर्क पड़ता है आप कैसे जी। उससे फर्क पड़ता है इस जीवन में आप क्या देकर गए, आपकी क्या खुशबू थी, और वो खुशबू के कारण आप अमर हो जाओगे। एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड हैज कम टू गिव समथिंग टू दिस वर्ल्ड। आप इस दुनिया में अपने कार्य के द्वारा, राइट, अपनी यूनिक आइडेंटिटी के द्वारा ईश्वर की एक लीला रचोगे। या आपकी लीला हो सकती है किसी आर्टिस्ट जैसी, या आपकी लीला हो सकती है कोई लीडर जैसी, या राइटर हो सकते हो, या आप दुनिया के लिए कुछ चीज क्रिएट कर सकते हो, राइट, या आप प्रेम का संदेश दे सकते हो। पर एक लीला आपके द्वारा ईश्वर रचेगा, और इसकी लीला सबकी लीला एक दूसरे से भिन्न है, क्योंकि ईश्वर की प्रकृति ही है यू आर मोर। हमें समझना है हम कुछ भी नहीं करते जो किसी और ने किया है, हम उसके ऊपर बिल्ड करते हैं। जैसे एक बार आइंस्टीन ने कहा, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, वो बहुत खूबसूरत है। आज अगर आपको एप्पल का पाई बनाना है, केक, अगर आपको एप्पल पाई शुरुआत से बनाना है ना, आपको यूनिवर्स को क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब एप्पल पाई के लिए आपको जो चीज चाहिए ना, उसके लिए आपको पूरी विश्व का वापस निर्माण करना पड़ेगा। तो हमें समझना है कि हम एक दूसरे के ज्ञान के ऊपर क्रिएट करते जाते हैं, और अल्टीमेटली यूनिवर्स केवल एक्सपैंड होता रहता है। किसी ने इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की थी, किसी ने टेलीफोन डेवलप किया था, पर आप देखो वो वहां रुक नहीं गई, कंटिन्यूस उसके ऊपर मॉडिफिकेशंस होते जा रहे हैं। कैसे कैसे मोबाइल फोन्स हो रहे हैं। हो सकता है एक समय आए कि हमें फोन की ही जरूरत नहीं है, हमें कंटिन्यूसली फोन छोटे 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 चाहिए। अब तो ऐसे फोन आ गए कि आप बस उसको हवा में क्रिएट करो, हवा में ही डायल करो और हवा में ही बात करो। तो क्या है कि इंसान किसी चीज से रुक नहीं सकता। अगर हम उड़ नहीं सकते तो हमने हवाई जहाज बना दिया। अगर हम स्विम नहीं कर सकते डीप वाटर, तो हमने सबमरीन बना दिया। हम बहुत तेज दौड़ नहीं सकते तो हमने गाड़ियां बना दी। हम जो चीज नहीं कर सकते, हमने उसके लिए कोई उपकरण तैयार कर दिया। हमने टेलीस्कोप तैयार कर दिया कि हम यूनिवर्स को देख सकते हैं। हमने कंप्यूटर तैयार कर दिया कि हम अपने ब्रेन से ज्यादा तेजी से काम कर सकते हैं। हम किसी चीज से रुक ही नहीं सकते। और ये रियलाइज करने के लिए यू आर मोर, हमें जो 7 चक्र हैं, हमारे शरीर में 7 केंद्र हैं, हमें वो 7 केंद्रों को बैलेंस करना है। बुद्धा ने कहा 8 फोल्ड पाथ, पतंजलि ने योग सूत्र दिए, राइट। हर मास्टर ने अपने तरीके से ज्ञान को दिया। हम ज्ञान देते हैं 7 चक्रों के माध्यम से। एक्चुअली तो चक्र 8 होते हैं, पर हम उनको कॉमन चक्र जो होते हैं वो 7 चक्र होते हैं। और ये 7 चक्र के जब आप लेसन्स को समझोगे, और आपको समझना है, आपको कोई सीखना नहीं है, क्योंकि सारा ज्ञान ऑलरेडी आपके अंदर है। हम किसी को लाइफ में कुछ सिखा ही नहीं सकते। हमेशा समझो, आप अपने बच्चे को कुछ सिखा नहीं सकते, बेटा ये मैनर्स है, ये डिसिप्लिन है, ये ऑनेस्टी है, ये आदर करना है, ये हार्ड वर्क करना है, तुझे कॉन्फिडेंट होना है, तुझे पावरफुल होना है।
हम बच्चे को सिखा नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को याद दिला सकते हैं कि बेटा ये तू है। तो सबसे पहले समझो, कोई भी टीचर किसी को सिखा नहीं सकता, कोई भी मास्टर किसी को सिखाता नहीं है, वो केवल धूल हटाता है। तुझे क्या लगता है तू ये है, पर तू तो नहीं चाहता। आज मेरे पास जब लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, वो अपनी लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स बताते हैं कि मैम मुझे बहुत कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, मैं बात नहीं कर पाता हूं और मैं दब जाता हूं, राइट, मैं दूसरों के अधीन हो जाता हूं, मुझे हमेशा नर्वसनेस होती है, राइट, और मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूं और मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं रहता। तो देखो, हर इंसान को पता है कि मैं क्या नहीं हूं, और हर इंसान जानता है कि मैं क्या हूं। ये जो डिस्टेंस है ना, मैं क्या नहीं हूं और मैं क्या बनना चाहता हूं, वही काम है एक गुरु का, एक टीचर का, कि आपको अंधेरे से प्रकाश की तरफ लेकर जाए। लाइफ इज अबाउट मूविंग फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। और ये डार्कनेस क्या है, ये एक टाइप की धूल है, क्लाउड है, परत है। इसको क्या करना है, इस परत को छांटना है, हटाना है। और जितने भी टेक्निक्स है दुनिया में, ये परत को ही हटाते हैं। जब परत को हटाते हैं, प्रकाश दिख जाता है। और लोग अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं कि आप ये प्रकाश को कैसे देखो, राइट। अब ये जो परत हटाने का टेक्निक है, कुछ लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट ज्ञान को देखते हैं, ये मेरा ज्ञान है। उसके लिए क्या है, कुछ लोग एफर्मेशंस करते हैं, एफर्मेशंस, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं। और कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो भय है इसको देखते हैं और इससे डील करते हैं। हमारा जो चक्र योग का मार्ग है, हम इसको कहते हैं ये नेति नेति मार्ग है, जिसमें हम अंधेरे को देखते हैं। और जब हम अंधेरे को देखते हैं और जब इसके दृष्टा बनते हैं, हम अंधेरे को छांट सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। आज जितने भी लोग आए हैं, आज आपका कोऑपरेशन रहा। मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगी जिससे आप कोई भी एक भय को एक सेशन में हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से हटा सकते हैं। कैन यू बिलीव दैट? इतना पावरफुल। एक सेशन में एक भय गया। और हम भय को करेंगे अनिश्चिंता। आज इतनी दुनिया में एंशियसनेस है, राइट, फियर है। आज इसके बाद जो जो लोग मेडिटेशन के लिए रेडी होंगे, जो श्रेया जी ने बताया था, दैट ऑल ऑफ यू आर वेरी इंटरेस्टेड ऑडियंस। मैं बहुत बार ये मेडिटेशन नहीं करवाती हूं जब तक मुझे नहीं कॉन्फिडेंस होता है कि लोग इसको रिस्पेक्ट के साथ करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन। तो आप सब साथ देंगे तो मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगी, आप कोई भी टाइप का भय हटा सकते हैं। आज जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम हमारे को है क्या? भय ही तो है। आज लाइफ में भय के अलावा देयर इज नो प्रॉब्लम। हर चीज भय है। मैं कभी लोगों को कहती हूँ, वो कहते हैं नहीं नहीं मैम मुझे तो भय नहीं है। तो मैं कहती हूँ व्हाट डू यू मीन भय नहीं है? आज आपको क्या लगता है भय का मतलब है किसी चोर का भय, डाकू का भय, राइट? आज हर चीज जो आपको परेशान करती है वो भय है। लो कॉन्फिडेंस फियर है, इनस्टेबिलिटी का फियर भय, पावरलेसनेस भय, आप अगर किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते वो भय, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते भय, आप किसी चीज को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर सकते भय। आज आपका जो जीवन चल रहा है आप उससे संतुष्ट नहीं हो
वो भी बढ़े। इस सेशन के पहले आपको एक मैसेज मिला होगा जिसमें आपको एक लिंक दी थी, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस को टिक करना था। मैंने देखा आप में से कुछ लोगों ने टिक किया, नॉट एवरीवन। तो जिसने नहीं किया है, प्लीज डू इट आफ्टर द सेशन, बिकॉज वो क्या है, वो एक सेल्फ एनालिसिस है। आप स्वयं को एनालाइज कर सकते हो, मेरे कौन से चक्र ब्लॉक्ड है और कौन से चक्र ओपन है, राइट? तो उसमें आपके पास बहुत सारे आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसके साथ आपके पास एक ग्राफ आया था कि मेरे चक्रों का स्टेटस क्या है, राइट? तो जिनके पास वो ग्राफ है, क्योंकि मैंने देखा एटलीस्ट मोर देन 40% हैव डन इट, सो आई रियली कांग्रेचुलेट। बाकी लोग प्लीज आप कर देना। तो उस जो आपकी रिपोर्ट आई थी आपने देख लिया है, और इसलिए आपको जो मैं बात करूंगी आपको ज्यादा इजीली समझ आएगा। ओके, मैं आपको कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिखा रही हूं, नथिंग टेक्निकल, आज हम केवल बात करें। ओके, तो मेरी बात आपको थोड़ी स्पष्ट है, क्लियर है? थोड़े से लोग चैट कर दें, राइट? ऑडियो वीडियो सब ठीक है? प्लीज थोड़ा सा चैट करके थोड़ा सा साथ दीजिए। और मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ, शुद्ध हिंदी में, सो आई होप दैट इज ओके, राइट? क्लियर है राहुल? एवरीवन इज क्लियर, राइट? वीडियो भी क्लियर है, ऑडियो भी क्लियर है? यस, ऑल इज ओके? Yeah, we are receiving it well, ma'am. Yes? We are receiving it well. Oh, thank you so much. Thank you. Okay. चलो ठीक है, तो एक दम भरते हैं और एक एक करके सारे चक्रों के बारे में हम सीखते हैं। ओके, अब सबसे पहला चक्र देखिए। चक्र में क्या होता है, आप समझिए कि हर चक्र में कोई ना कोई ज्ञान निहित होता है। देयर इज सम लेसन इन ईच चक्र। तो इसको शुरू करने के पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूं चक्र का। ओके, सो लेट मी शेयर द वीडियो विथ यू। ओके, चक्र इंट्रोडक्शन। ओके, एक सेकेंड ना, मैंने पहले सोचा नहीं था दिखाने का, बट आई जस्ट टेक अ मिनट और मैं आपको एक छोटा सा, जिसमें आपको चक्र का सारा ब्रीफ बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। ओके, आपको दिखा देती हूँ। YouTube में हमारा चैनल है मेरे नाम से, और उसमें मोर देन 1000 वीडियोस हैं। तो जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, आप चक्र के बारे में डिटेल देख सकते हैं। यस, यू कैन सी दिस। ओके, ये इंग्लिश में है पर आपको समझ आ जाएगा, देख लीजिए। छोटा सा 5 मिनट्स का वीडियो है, पर बहुत चीजें कवर करता है। There is a series of energy fields and centers of consciousness, which is called chakra or padma. History of chakras. शुभम जी, शायद गलती से आपका प्रेजेंटेशन ऑन हो गया है। आप आपका प्रेजेंटेशन टर्न ऑफ कर दीजिए। ये चक्र की नीता मैम, आप फिर से क्लियर कर सकते हैं। ओके ओके, मैं वापस चला देती हूँ। ओके, ये बहुत संक्षिप्त में आपको चक्र का काफी सारा ज्ञान प्राप्त होगा, तो इसको ध्यान से देखिए। Within each and every living being at every subtle level, there is a series of energy fields and centers of consciousness, which is called chakra or padma. History of chakras.
Right. Can you ask Kailash Mudvarani to stop unmuting? Okay. आप मेरे को कैलाश जी, आपको unmute मत नीता जी, कीजिए। नीता जी क्या हो रहा है आपके यहाँ से ना, इको हो रहा है वीडियो का ऑडियो। अच्छा कोई बात नहीं, चलो ठीक है, तो मैं इसको बंदी कर देती हूँ। ऑडियो ऑफ करके दिखाएं, देख सकते हैं तो समझ ऑडियो ऑफ करके दिखा देती हूँ। ओके फाइन, ठीक है, ओके। Even though chakras are invisible, they are located along the length of the spinal cord at the junction of arteries and veins. Neurochemists have discovered a connection between 7 basic chakras and specific endocrine glands. Each of the 7 chakras energetically affects not only certain parts of the body, but also affects our consciousness and emotions, mental and spiritual aspects. Each chakra has its own specific frequency and is associated with special color and sound wave. Chakras are also connected with specific planets. Each chakra takes energy from the environment and transforms it into a beneficial element, which is called prana, which is transmitted into the body organs to keep them healthy and vibrant. It returns the stale and stagnant energy back to the environment. Chakras work optimally when you live your true, joyful, loving and intelligent nature. However, they get blocked when you allow fear and emotions to grip you while facing difficult situations of life. Blocked chakra means blocked energy supply to the organs and dimensions that these chakras govern. This leads to physical, mental, and emotional imbalances. With this arises stress, lethargy, pain in the body, poor digestion, and several diseases. You face financial blockages and disharmony in relationships. We must release the stagnant energy in the chakras by releasing fears and negativity. When you attune to the spiritual laws of life that govern the chakras become balanced. So chakra meditation and chakra balancing are powerful tools
that help you live to your full potential. ओके, अब आपने ये जो पीपीटी देखा, मैं इसको और आसान तरीके से आपको बताती हूँ. ओके, जो चक्र हैं वो बेसिकली हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे होते हैं एंड दे आर लाइक व्हील्स. आप में से जो लोग रेगुलरली मेडिटेट करते हैं, आपको हमेशा इसका एहसास हुआ होगा that there are some frequencies which which are along your spine. कभी आपको यहां फील होगा, कभी थ्रोट पे फील होगा, कभी हार्ट पे फील होगा. और जो लोग बहुत गहरी मेडिटेशन करते हैं वो इनके कलर्स देख सकते हैं, और जो लोग और गहरी करते हैं वो इसका शेप दे सकते हैं, और जो लोग और गहरी करते हैं वो इनके लेसन्स देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उनको अपने जीवन में उतार सकते हैं. जैसे मैंने कहा, लाइफ इज अबाउट गोइंग फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट. हर चक्र ब्लॉक होता है क्योंकि आपके जीवन में कुछ अंधेरा है. अंधेरा क्या है? अज्ञानता. कुछ चीजें हैं लाइफ के बारे में जो आप नहीं जानते, और यही अज्ञानता है जो जीवन में भय पैदा करता है. राइट? आज हर इंसान के जीवन में सबसे पहला भय क्या है? अस्थिरता. हर पर्सन को डर है, मेरे जॉब का क्या होगा, मेरी हेल्थ का क्या होगा. और जो चीज मुझे स्थिरता देती है, स्थिरता क्या देती है? आपका परिवार, राइट? आपका बिजनेस, आपका पैसा. और ये जो भय है, ये पहला भय है जो आपके मूलाधार चक्र को ब्लॉक कर देता है. जिन लोगों ने फॉर्म को भरा था और जिन्होंने देखा कि आपका मूलाधार चक्र का स्कोर 100 में से 50 से कम है, इसका मतलब चक्र काफी ब्लॉक है. और चिंता मत करो, 90% लोगों का मूलाधार इतना ही ब्लॉक रहता है. ये तो बहुत ही एक एवोल्यूशन के बाद ही ये चक्र ओपन होता है. ये चक्र रेड कलर का चक्र है और आपके स्पाइनल कॉर्ड के सबसे नीचे होता है. और पता है इसके स्वामी कौन है? गणपति. तभी उनको कहते हैं प्रथम पूज्य, कि हे ईश्वर, मैं अपना कार्य शुरू करने वाला हूं, तो मुझे ब्लेस कर. और ये चक्र है जो एक शक्ति देता है, एक इनिशिएशन देता है अपनी लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के लिए. आज आपके जीवन में अगर अस्थिरता है तो समझिए इसका मतलब है आपने ये दुनिया जैसे दुनिया को इक्वेट कर सकते हैं पृथ्वी से. इसका मतलब आपने पृथ्वी को पकड़ा नहीं है. ये चक्र के लेसन्स समझाने के लिए मैं आपको एक इजीली एग्जांपल देती हूं. आपके पास एक छोटा सा बीज है, राइट? एक डिब्बा है, उसमें बहुत सारे मिक्स्ड सीड्स हैं. आप उसमें से एक छोटा सा बीज लेकर उसको मिट्टी में डाल देते हैं. अब सबसे पहले वो बीज क्या कार्य करता है? सबसे पहले वो मिट्टी को फील करता है, राइट? और सबसे पहला कार्य करता है, वो देखता है हवा है, पानी है, धूप है, और मेरी माँ है मिट्टी, धरती माँ. और सबसे पहले अपने रूट्स उगाता है. और जैसे ही रूट्स उगाना शुरू करता है, धीरे धीरे उसकी कपोल निकलती है और वो बड़ा होना शुरू करता है. आज मूलाधार चक्र आपकी जड़ें हैं. आज अगर आप जीवन में अस्थिर फील करते हो, मतलब आपकी जड़ें मजबूत नहीं. और जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो क्या होगा? आप हमेशा डावाडोल होगे, राइट? हमेशा आप उस पेड़ की तरह रहोगे जो आंधी के साथ टूट जाता है, निकल जाता है, राइट? और तभी आपके मन में इतनी एंग्शियसनेस होगी, फियर होगा, अस्थिरता का भय होगा. और हर चक्र कनेक्ट करता है आपके शरीर के ऑर्गन से, राइट? मूलाधार चक्र जो है वो आपके स्केलेटल सिस्टम से कनेक्ट करता है. हर शरीर की एक एक बीमारी किसी चक्र से कनेक्टेड है.
आज अगर आपको स्केलेटल सिस्टम में प्रॉब्लम है, ऑर्थराइटिस है, मतलब आपका मूलाधार चक्र ब्लॉक है। आपको किडनीज में प्रॉब्लम है, मतलब दूसरा चक्र स्वादिष्टान ब्लॉक है। आपका पेट खराब रहता है, मतलब मणिपुर चक्र ब्लॉक है। आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, मतलब अनाहत चक्र ब्लॉक है। आपको थायराइड है, मतलब विशुद्ध चक्र ब्लॉक है। आपको साइनस है, मतलब आज्ञा चक्र ब्लॉक है, राइट। और आपको स्किन डिजीजेस हैं, मतलब क्राउन चक्र ब्लॉक है। दुनिया की हर रेमेडी वो चक्र पे ही तो काम करती है। अब ध्यान से सोचो, हर चक्र के कलर्स हैं, हर चक्र की फ्रीक्वेंसी है, राइट। हर चक्र पे ग्रह है, राइट। मूलाधार चक्र का कलर है रेड, स्वादिष्टान का ऑरेंज, मणिपुर का येलो। डिफिकल्ट नहीं है, आपको पता है ना, विप ग्योर। ऊपर से नीचे जाओगे तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो अगर आप उस चक्र को वो कलर दोगे तो चक्र बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो कलर थेरेपी इमर्ज हुई टू बैलेंस चक्र। सिमिलरली हर चक्र की एक फ्रीक्वेंसी है। अगर आप उस चक्र को कंटिन्यूअली वो फ्रीक्वेंसी दोगे, कैसे? सुन के, हियर करके। और फ्रीक्वेंसी हमारे मंत्रों में भी होती है। सो मूलाधार चक्र में है लम 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 लम, स्वादिष्टान में है वम वम वम, मणिपुर में रम रम एंड सो ऑन, राइट। तो या तो आप कलर दो, उसको कोई फ्रीक्वेंसी दो, इवन खुशबुएं चक्र को बैलेंस कर, राइट। और रुद्राक्ष जो है वो कमल सीता जी थेरेपी करते हैं, और रुद्राक्ष का भी जो पर्पस है इज टू बैलेंस चक्र। सो समझिए कि हर थेरेपी जो है कहीं ना कहीं चक्र बैलेंसिंग पे काम करती है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको अज्ञानता तो हटानी है। अगर आपने अज्ञानता नहीं हटाई तो चक्र बैलेंस नहीं हो सकता। वो टेम्पररी ठीक होगा और वापस बंद हो जाएगा। आप कोई भी थेरेपी यूज कर लो, तो ज्ञान योग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं जिन जिन का मूलाधार चक्र ब्लॉक्ड है कि यस मेरे में अस्थिरता है, पर मैं कैसे उससे बाहर आऊं। तो उसके 3 लेसन, राइट। उसके हर चक्र के कुछ सबक हैं जो आपको सीखना है। आज की वर्कशॉप में हम डिटेल में तो नहीं जा सकते। अगर नेक्स्ट टाइम श्रेया जी मुझे बुलाएंगी तो मैं डिटेल में एक एक चक्र की वर्कशॉप ले सकती हूँ, पर आज जितना पॉसिबल मैं कवर करती हूँ। तो स्थिरता लाने के लिए आपको क्या करना है? आज आपके अंदर अस्थिरता है, पर आप जानते हो कि मेरा नेचर स्थिर है, राइट। आप यहां से यहां कैसे आओगे? सबसे पहले ये भय हटाओ। प्रकृति का नेचर है आपका केयर करती है, राइट। आज जब आप पैदा हुए थे तो एक माँ की गोदी में ही पैदा हुए थे। उन्होंने आपका पालन पोषण किया, और जब भी आपको किसी चीज की जरूरत थी आपको हमेशा मिली है। कोई भी पर्सन इधर नहीं है जो भूखा सोया है। हमेशा एक छत थी और एक पलंग था। हमें रियलाइज करना है कि प्रकृति का नेचर ही पोषण करना है। तो भय क्या? भय होता है तो हम इधर आ जाते हैं, हम भय को समर्पित कर देते हैं, उस पर सरेंडर कर देते हैं, तो हम इधर आ जाते हैं। हमें रियलाइज करना है कि वी आर टेकन केयर ऑफ, वी आर नर्चर्ड। आज जब एक बीज मिट्टी में जाता है ना, वो कभी नहीं सोचता पता नहीं बारिश आएगी क्या, हवा आएगी क्या, तूफान तो नहीं आ जाएगा। उसको रियलाइज करना है कि हर तूफान उसको सिखाता है अपनी जड़ों को मजबूत कर। मूलाधार चक्र सिखाता है कि सबसे पहला सबक, रियलाइज यू आर सपोर्टेड। और आपका जो पहला परिवार है जो है आपके पेरेंट्स, सबसे पहले आपको अपने पेरेंट्स को ऑनर करना है।
रिस्पेक्ट करना है, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। जो पर्सन अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड होता है उसका मूलाधार चक्र तो हमेशा ही ओपन रहता है। पर जिसको अंदर से पेरेंट्स के लिए कोई गिला शिकवा होती है, भय होता है, ग्लानि होती है, उसका चक्र डावाडोल हो जाता है। तो पेरेंट्स के लिए जो एक हार्मोनियस रिलेशनशिप है, और तभी आपको कहानी पता है गणेश जी की, कि गणेश जी और कार्तिकेय में रेस चली कि कौन जल्दी से जीवन का, दुनिया का भ्रमण करेगा। कार्तिकेय जी तो अपने पीकॉक पे चले गए और गणेश जी अपने चूहे पे। पर गणेश जी ने क्या किया, उन्होंने अपने पेरेंट्स का सर्कल कर लिया कि मेरे पेरेंट्स ही मेरी दुनिया है, राइट। तो जिस पर्सन ने अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट किया, उनको अपनी दुनिया बनाई, उसका चक्र तो बैलेंस हो ही जाएगा। दूसरा सबक, वर्क। आज आप दुनिया में आए हो कोई कार्य करने के लिए, और वो कार्य करके ही आप ईश्वर को पहचानोगे। अगर आप काम से डर जाते हो, उससे भाग जाते हो, उसको स्थगित करने की कोशिश करते हो, तो चक्र आपका बैलेंस हो ही नहीं सकता। तो अपने काम को रिस्पेक्ट करो। इसके लिए एक छोटी सी कहानी है। अकबर के राज्य में लोग बहुत आलसी हो गए थे। अब राजा जी बड़े परेशान, मैं क्या करूं। तो उन्होंने क्या किया, रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया। बड़े बड़े जमींदार आए और बड़ा कंप्लेन करके चले गए, यार कैसी हमारी प्रशासन है, हम जा ही नहीं सकते आगे। तो बहुत लोग वापस चले गए। उसके बाद एक मेहनती किसान आया, उसने क्या किया, अपने बेटे के साथ दम लगा के उसने पत्थर को हटा दिया। जब हटाया तो उसके अंदर नीचे गड्ढे में एक सोने की गिन्नियों की पोटली थी। जीवन में वही होता है, जब आप बड़े बड़े पत्थर हटाते हो आपको गिन्नियां मिलती हैं। जब जब आप लाइफ में एक प्रॉब्लम को फेस करते हो आप इवॉल्व होते हो, आपको एक टाइप की एक प्रॉस्पेरिटी मिलती है। जिस पर्सन ने मेहनत करने को वर्शिप मान लिया, उसके जीवन में पैसे की कभी कमी हो ही नहीं सकती। क्लियर। और इसका थर्ड सबक है, आपको अपने शरीर पे विश्वास रखना है कि मेरा शरीर जो है सक्षम है हर चीज को फेस करने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो कंटिन्यूअस अपनी हेल्थ के बारे में चिंता करते रहते हैं। मुझे कोविड तो नहीं हो जाएगा, मुझे ये तो नहीं हो जाएगा, मुझे डायबिटीज तो नहीं हो जाएगा, मेरे परिवार में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, मुझे तो नहीं हो जाएगा। आप सोचो, हर बीमारी तो सोच से होती है ना, आपको क्यों हो जाएगा। आपको अपने शरीर पे विश्वास रखना है कि इसका जो मूल आधार है, पर्पस ऑफ द बर्थ इज सेल्फ रियलाइजेशन। आपको शरीर की क्या चिंता करनी है, वो है ना। तो जितना आप समर्पित हो जाओगे स्वयं को पहचानने के लिए, आपका शरीर आपका साथ देगा। तो ये लेसन्स है मूलाधार चक्र के। ओके, क्लियर। अब हम क्विकली सेकंड चक्र पे जाएं। वैसे मुझे दिख रहा है कि मैं टाइम क्रॉस कर रही हूं, बट व्हाट आई विल डू इज, श्रेया जी अगर आपकी परमिशन है तो आज हम मेडिटेशन को स्किप करते हैं। मैं मेडिटेशन को मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, राइट। उससे क्या है कि हमारे पास जो समय है हम उसको यूज करेंगे फॉर द कंटेंट। श्रेया जी, इट्स ओके, राइट? Yes, Neeta ji, as you decide. ओके, ओके, थैंक यू सो मच। अब हम दूसरे चक्र पे आते हैं जो है स्वाधिष्ठान चक्र। लोग अपना स्कोर देख सकते हैं। अगर आपका स्कोर 50 से कम है तो फिर आपको इस चक्र पे विशेष ध्यान देना है। और जो लोगों को पीठ के पीछे दर्द होता है, लोअर बैक पेन, जिसको फ्रीक्वेंटली कॉन्स्टिपेशन और गैस होता है, जिसको किडनी प्रॉब्लम है, राइट, और जिसको कंसेप्शन इश्यूज हैं, बच्चे नहीं हो रहे, राइट, और जिसको हमेशा थकान रहती है,
मसल पेन होता है, बॉडी पेन होता है, मतलब आपका स्वादिष्टान चक्र काफी ब्लॉक्ड है। अब ये चक्र हमें क्या सिखाना चाहता है? ये चक्र हमें सिखाना चाहता है कि तू कौन है, तेरी आइडेंटिटी क्या है, और क्या तुझे खुद पर विश्वास है। आज जो बीज जिसने अपनी जड़ें उगा दी थी, वो पहचानने की कोशिश कर रहा है, मैं कौन हूं? क्या मैं पपीते का हूं? क्या मैं सेब का हूं? क्या मैं वाटरमेलन हूं? भाई उसको नहीं पता। पर क्या होता है, आज आपको नहीं पता कि दुनिया में आप क्या कर रहे आए हो, पर क्योंकि नहीं पता आप डर जाते हो। यू लूज कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। आज आपका खुद पे विश्वास ही चला गया है। जब आपको वो टाइप के मार्क्स नहीं मिले, जब लोगों ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, जब चीजें आपके मुताबिक नहीं हुई, आपको लगा कोई मेरे में कमी है क्या? इज देयर सम प्रॉब्लम इन मी? और जब आप इतने घबरा गए, आपका सारा कॉन्फिडेंस खुद पे ही चला गया, और फिर आप सबसे डरने लग गए। इसने कुछ किया तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। जब तक आपको खुद पे विश्वास नहीं है ना, आपको किसी पे हो ही नहीं सकता। Till you don't have faith in yourself, no one will stand up for you. और जब आपको इतना इंटेंस भय होता है, आपका ये चक्र ब्लॉक हो जाता है, राइट? और जब ये चक्र ब्लॉक होता है तो आपका मस्कुलर सिस्टम फेल हो जाता है। मूलाधार चक्र में स्केलेटल सिस्टम डैमेज होता है, स्वादिष्टान चक्र में मस्कुलर सिस्टम डैमेज होता है। और जब ये चक्र जो है ब्लॉक होता है, आप इमोशनली बहुत अनस्टेबल होते हैं। छोटी छोटी बात पे आपको रोना आ जाता है, आपको खुद पे बहुत पिटी होता है, राइट? खुद पे बहुत दया आती है, खुद को बहुत ही आप वीक महसूस करते हैं। अब आप कहोगे यस यस मेरे सिम्टम्स है, अब मैं क्या करूं? मैं वापस वही कहूंगी, अंधेरे को देखो, अंधेरे को हटाओ, उजाला नीचे। आज आपको अपना जितना भी लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको आपको हटाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं तब मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा। वो कहता है जब तुझे कॉन्फिडेंस आएगा ना, तब तू सक्सेसफुल होगा। आज एक बच्चा अगर डर जाता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, क्या वो पढ़ाई कर सकता है? तभी हम बच्चे से कहते नहीं बेटा तू कर सकता है, तू कर तो सही, तू कर सकता है। जब तक आपका खुद पे विश्वास नहीं है, आप कर ही नहीं सकते। इसमें मुझे एक सिंपल सी स्टोरी याद आती है, जो आप सबको पता है पर सुनने में हमें बड़ा मजा आता है। एक महारानी थी विद्योत्तमा, जो बहुत ही इंटेलिजेंट थी, पर क्या किया कि उसने ना एक स्वयंवर रखा कि मैं सबसे इंटेलिजेंट आदमी से शादी करूंगी। पर इस चक्कर में क्या हुआ, बहुत सारे विद्वान जो है ना, उनका ईगो हर्ट हो गया। तो उन्होंने एक सबसे बड़ा मूर्ख पकड़ा जिसका नाम था दास, और उससे इसकी शादी धोखे से करवा दी। अब जब शादी हुई और पहली रात को उसको पता लग गया कि यार ये तो मूर्ख है, और उसने गुस्से में उसको बाहर निकाल दिया कि तुम्हारे तो दिमाग में पत्थर बड़े पड़े, तुम तो ठीक हो ही नहीं सकते। अब दास जो है वो तो बड़े दुखी हो गए, उन्हें तो लगा कि मैं अपनी आत्महत्या ही कर लूं। तो वो गए। अब जब वो इतने दुखी थे तो उन्होंने देखा कि नदी के किनारे औरतें कपड़े धो रही थी, और वो पटक पटक के उन्होंने देखा कि पत्थर पे भी निशान हो गए। तो उसने लगा बाप रे, अगर कंटिन्यूअसली पटक के पत्थर पे निशान हो सकते हैं तो मेरी बुद्धि में नहीं हो सकते क्या? और तब जाके वो मां काली के पास गए, और वहां जाके उसने काली से कहा, काली क्या है? अंधेरा, डार्कनेस। उसने काली से कहा मैं तो तेरे पे समर्पित हो जाता हूं, तू मुझे सिखा। ये काली ही तो है जो गौरी बनती है। जब उन्होंने समर्पित होके कहा मैं तो अपनी जबान ही काट देता हूं, राइट? जब ऐसे किया तो काली प्रकट हुई और उनको आशीर्वाद दिया,
और उनके मुंह से कविताएं, गाने, स्तोत्र निकलने लगे और उनका नाम हुआ प्रसिद्ध कवि कालिदास। तो आज हमें समझना है कि हर पर्सन में ज्ञान है, पर वो ज्ञान अंधेरे के नीचे छुपा है। जब तक आपको खुद पे फेथ नहीं होगा, आप ये ज्ञान को एक्सेस नहीं कर सकते। आज जब तक आपके पास खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, यू कैन नॉट बी अ क्रिएटर। आपको बच्चे कैसे हो सकते हैं? बिकॉज दैट इज द बिगेस्ट क्रिएशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो मेरे पास जब कपल्स आते हैं काउंसलिंग के लिए, मेरा एक ही काम होता है, टू कनेक्ट देम टू देमसेल्व्स, कि तुम हो क्रिएटर और ये तुम्हारा क्रिएशन है। और इसके ही लेसन से हम इस चक्र को ओपन कर सकते हैं। राइट? इज इट क्लियर? लोग समझ रहे हैं? मुझे एक दो मैसेजेस चाहिए मोटिवेशन की। आपको 2 चक्र समझ आ गए हैं सबको? ऑल फाइन? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पार्वती, नाइस टू सी यू। यस, थैंक यू कैलाश जी। अब हम आते हैं 3rd चक्र पे। अब ये जो पेड़ बड़ा हो रहा है, उसने रियलाइज कर लिया कि ठीक है भाई, मुझे नहीं पता कि मैं पपीता हूं, मेलन हूं, सेब हूं, मैं कुछ तो हूं। अब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ। अब टाइम है कि उसको अपनी शक्ति पहचाननी। मेरी शक्ति क्या है? राइट? व्हाट इज माय पावर? आज अगर आपके पास पावर नहीं है तो क्या होगा? लोग आपको दबाएंगे, आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, आप सैक्रिफाइस करोगे। तो अब टाइम आ गया है कि पेड़ को अपनी शक्ति पहचाननी है। उसको पहचानना है कि मैं कौन हूं, मेरा ज्ञान क्या है। बिकॉज नॉलेज इज पावर। अब धीरे धीरे पेड़ को पता लगने लग जाता है कि यस, मैं तो पपीते का पेड़ हूं और ये मेरा पावर है। इसके कारण कोई भी मुझे काट के नहीं ले जाएगा, क्योंकि उसको पपीते चाहिए ना। सो आज हर इंसान के पास पावर होता है, और वो पावर कहां होता है? मणिपुर चक्र में। और मणिपुर चक्र कहां है? आपके पेट में। आपका पेट ही तो आपका शरीर का किचन है ना, किचन। वहीं पर तो सारा खाना पकता है, वहीं पर तो अग्नि होती है, और यहीं पर सूर्य है। और क्या सूर्य को रोशनी कहीं बाहर से मिलती है? सूर्य को अपनी शक्ति कोई बाहर से मिलती है? नहीं। सूर्य की शक्ति अपने अंदर से ही पैदा होती है। आपकी जो पावर है ना, वो आपके अंदर है। राइट? आप कहोगे पावर तो अंदर है, पर मैं इतना वीक फील करता हूं, इतना विक्टिमाइज फील करता हूं, सब लोग मुझे दबाते हैं, मैं क्या करूं? राइट? व्हाट टू डू? जिस जिस लोगों ने उनका स्कोर 50 से नीचे आया है, राइट, उनको डेफिनेटली इनडाइजेशन होगा, एसिडिटी होगी, राइट, लिवर की प्रॉब्लम्स होगी, डायबिटीज हो सकता है। इसका मतलब आप पावर से कनेक्टेड नहीं हो। और जब आप इसके ज्ञान सीखोगे, आपका पावर वापस आएगा और हेल्थ इश्यूज भी जाएंगे। हर हेल्थ इश्यू ठीक हो सकता है अगर आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया। राइट? जो बाहर की रेमेडीज हैं वो सिम्टम हटाती है, पर जो रूट कॉज है वो तभी जाता है जब आप उसके लेसन्स को सीखते हो और अपने जीवन में उतारते हो। अब ये क्वेश्चन आएगा कि मैं अपने पावर से क्यों नहीं कनेक्टेड हूं? पता है, इसका एक बहुत सिंपल चीज है। आप अपने पावर से कनेक्टेड नहीं हो क्योंकि आप निर्भर हो, निर्भर, या आप सोचते हो कि आप किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। जब आप जीवन ऐसे जीते हो कि या तो मैं किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं या मैं किसी पर निर्भर हूं। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स सोचते हैं कि मैं बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। राइट? आज एक पर्सन जब जॉब करता है वो सोचता है कि मैं अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। राइट? क्योंकि आप सोचते हो आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपके अंदर भय पैदा होता है, भय, फियर ऑफ फेलियर। क्या होगा अगर मेरा जॉब चला गया? तो मैं रिस्क नहीं ले सकता।
मैं बॉस को जवाब नहीं दे सकता, मैं ऑफिस में झगड़ा नहीं कर सकता। एक पर्सन जो स्ट्रेस में जीता है ना, क्योंकि उसके अंदर फियर ऑफ फेलियर होता है, राइट? और फियर ऑफ फेलियर क्यों होता है? क्योंकि आप इस पर निर्भर हो कि मेरे जॉब के कारण मेरा घर चल रहा है, मेरे पैसे के कारण मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? तो आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण अपनी कंपनी पर निर्भर हो जाते हैं, और इसके कारण शुरू होता है आपका विक्टिमाइजेशन एंड पावरलेसनेस। अब आप कहोगे फिर मैं कैसे करूं, मैं तो निर्भर फील करता हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल भी हूं, मैं क्या करूं उसके लिए? उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक डाकू था, उसका नाम था रत्नाकर। अब वो क्या करता था, जंगल में छुपता था और लोग आते थे तो उनका सब छीन लेता था और जरूरत पड़े तो उनको मार देता था, राइट? और उसके बाद एक दिन नारद मुनि आए। नारद मुनि तो डरते नहीं है, लोग तो उससे डर जाते थे। तो नारद मुनि ने कहा, मुझे बताओ भाई, तुम्हें पता है कि तुम जो काम कर रहे हो वो सही नहीं है? कहते हाँ, मुझे ये तो पता है कि सही नहीं है और मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पर मैं क्या करूं? मेरे बूढ़े माँ बाप है, मेरी बीवी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं क्या करूं? मुझे उनका पेट तो पालना है ना। तो नारद मुनि ने कहा कि तुम बताओ, तुमने जो इतने पाप कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा परिवार भी इसके सहभागी होगा, इस पाप का सहभागी? कहता क्यों नहीं होगा, उन्हें पता है मैं उनके कारण कर रहा हूं। तो नारद मुनि कहते हैं एक काम करो, जाओ उनसे पूछ के आओ। तो कहते हैं ठीक है, तुम जाना मत। तो उन्होंने उनको पेड़ से बांध दिया। अब रत्नाकर जी गए और जाके उन्होंने अपने पेरेंट्स से पूछा कि मम्मी पापा, मैंने आपकी कितनी सेवा की है, आप मेरा थोड़ा तो पाप लोगे ना? पेरेंट्स कहते हैं अरे मूर्ख, हमने तो तुझे पाला, अब तेरा कर्तव्य है हमारे को पालना, पर तू जो कर रहा है उसका तेरे को ही दंड भुगतना है, हमने अपना काम कर दिया। और वो बड़ा आहत हुआ। फिर जाके उसने अपनी वाइफ से पूछा, देखो मैं तुम्हें कितने गहने देता हूँ, कितने कपड़े देता हूँ, तुम्हारी इच्छाएं पूरी करता हूँ, तुम तो मेरे साथ चलोगी ना जब मैं नरक जाऊंगा? वो कहते अरे मैं क्यों जाऊं, ये जो तुम करते हो ये तुम्हारा काम है, भाई तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरा ध्यान रखना। फिर तो वो घबरा गया, उसने कहा नहीं नहीं, मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बच्चे तो मेरे साथ चलेंगे। बच्चों ने कहा नहीं नहीं पापा, हम तो यंग हैं, जवान हैं, हमारा जीवन हमारा है, ये तो आपका कर्तव्य है। उससे वाल्मीकि को जो आहत हुआ, जितने वो आहत हुए, उन्होंने जाकर फिर नारद मुनि के पैर पकड़ लिए कि नहीं, ये तो मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबल हूं, राइट? और तब जाके उनको मार्ग मिला, राइट? उनको मार्ग मिला सत्य का, कि आज बिकॉज आप सोच रहे थे कि आप इनके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आप जो है ऐसा काम करने लग गए और इस पर निर्भर हो गए। पर हमको समझना है, हम जो भी करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम हैं। तो इससे हम क्या सीखते हैं? हम किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है और हम किसी पर निर्भर नहीं है, हम रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। जिस दिन आप रियलाइज करोगे मैं बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल पेरेंट हूं और मैं वही करूंगा जो सत्य है, मैं मेहनत करूंगा, राइट? अपना जो मेरे लिए सही है वो करूंगा, पर बच्चों के लिए गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। तो जब हम निर्भर होते हैं और जब हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हम सत्य नहीं देख सकते। बच्चे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वो बच्चे हैं, वाइफ अपना रोल प्ले कर रहे हैं, पेरेंट्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ईश्वर उनको सपोर्ट कर रहा है आपके द्वारा, आप नहीं कर रहे हो। आपको लाइफ में हर रिलेशनशिप को पार्टनरशिप समझना है। आप बच्चों के साथ पार्टनर हो, अपनी वाइफ के साथ पार्टनर हो, अपने जॉब के साथ पार्टनर हो। हर पर्सन के साथ जिस दिन आप पार्टनरशिप समझोगे और उनको कहोगे तुम अपना रोल करो,
राइट? मैं अपना रोल करता हूं और ईश्वर सबको सपोर्ट करता है। मैं अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, तू अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है। आज पेरेंट्स बहुत घबराते हैं, बच्चों का क्या होगा, उनके एग्जाम्स का क्या होगा, और बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं। मैं उनसे कहती हूं, बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। भाई तुम्हें पास होना है, तुम्हें फेल होना है, मेरा काम है घर में खाना लाना, पैसे देना, दैट्स इट। और जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, वो रिस्पॉन्सिबल बनता है। तो आज अगर आपको लाइफ में शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, तो लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाना सिखाओ। एंड दैट इज द लेसन ऑफ द मणिपुर चक्र, क्योंकि ये रूल है सूर्य से। आप देखो सूर्य कैसे सौर मंडल में सारे ग्रहों को संभालता है। वो सबको एक प्रॉपर ट्रैजेक्टरी दे देता है, भैया सब इस ट्रैजेक्टरी में रहो, थोड़ी मस्ती करी तो तुम हार गए। वो प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, रूल्स के साथ एक सिस्टम बनाकर चलता है, राइट? और उसकी शक्ति उसके अंदर से आती है, नॉट क्योंकि वो कहीं से लेता है। आज आप किसी कंपनी पे निर्भर नहीं हो। आज कंपनी को उतनी ही जरूरत आपकी है जितनी जरूरत आपको उनकी है। ये हमेशा रियलाइज कर। ओके, तो ये है मणिपुर चक्र के लेसन। ओके, अब हम आते हैं अनाहत चक्र पे। सब लोग समझ रहे हैं? सब लोग बहुत हैवी तो नहीं है? भूख तो नहीं लग रही सबको लंच टाइम पे? ओके, सो अब हम आते हैं अनाहत चक्र पे, जो है हमारा हृदय का चक्र। जैसे हमने देखा, हर चक्र हमें स्वयं से ही कनेक्ट कर रहा है, राइट? हम जो जो लेसन सीख रहे हैं वो सब लेसन हमारे ही लेसन हैं, जिसको कहते हैं हायर सेल्फ, विच इज गॉड। हम जैसे जैसे अंधेरे से प्रकाश की तरफ आते हैं ना, हम नेचुरल बनते जाते हैं, नेचुरल हम स्थिर होते जाते हैं, स्थिर। जैसे बुद्धा ने कहा था ना कि अल्टीमेटली बिकम स्टिल, और जैसे बाइबल में लिखा है बी स्टिल एंड नो यू आर गॉड। तो जैसे जैसे आप अपने नेचर से कनेक्ट होते जाते हो, आप स्थिर हो जाते हो। और हृदय चक्र में हमारा नेचर है प्रेम, हमारा नेचर है सेल्फलेसनेस, हमारा नेचर है देना, राइट? और हृदय एक प्लेस है जहां से हम अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, राइट? और ये चक्र ब्लॉक होता है, हमें हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, क्योंकि हम देते नहीं है, हम लेने की इच्छा करते हैं। एक्सपेक्टेशंस, बच्चे मुझसे प्यार करें, मुझे पैसा मिले, मैंने ये काम किया है, मुझे यश मिले। जब आप लाइफ में एक्सपेक्टेशंस करते हो ना, आप दुनिया को कंट्रोल करते हो। और जबकि कृष्ण ने बोला है तू कर्म कर, फल की इच्छा मेरे पे छोड़ दे, क्योंकि वो कर्म के द्वारा आपको स्वयं के नेचर से अवगत कराना चाहते हैं। और हम क्या सोचते हैं, मैंने ये काम किया तो मुझे इसका फल मिले। और जब हम फल की इच्छा करते हैं, ये चक्र ब्लॉक हो जाता है। तो अगर इस चक्र को खोलना है, तो जो अंधेरा है एक्सपेक्टेशंस, जो अंधेरा है मिसट्रस्ट, जो अंधेरा है सेल्फिशनेस, जब हम इस अंधेरे को छटाएंगे और हम एक गिविंग बन जाएंगे, लविंग बन जाएंगे, तो क्या होगा? ये चक्र खुलेगा। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहती हूँ, कृष्ण और सुदामा की। आपको पता है एक कहानी है कि सुदामा गरीब क्यों थे। कहते हैं एक बार वो संदीपनी ऋषि के आश्रम में दोनों पढ़ते थे। गुरु पत्नी ने उनको एक दिन, जब वो लकड़ी काटने गए, तो एक दिन गुरु पत्नी ने उनको खाने के लिए भुने हुए चने दी। उन्होंने कहा भाई बारिश हो सकती है, तूफान हो सकता है, तुम अटक सकते हो। तो उन्होंने, जो सुदामा सबसे बड़े थे, उनको भुने हुए चने दिए। अब क्या हुआ, उन्होंने लकड़ी वगैरह काट ली और बहुत तेज बारिश हो। अब फटाफट ये लोग पेड़ पे चढ़ गए।
तो सुदामा जी तो पतले से थे, वो सबसे ऊपर बैठ गए। फिर कृष्ण जी, बालभद्र जी और सब लोग पेड़ पे सुरक्षित हो गए। अब भूख लगी, अब सुदामा जी जो है एक एक कर चने खाने लगे, राइट। अब कृष्ण जी ने पूछा, आवाज क्या आ रही है, तुम कुछ खा रहे हो क्या? कहते नहीं नहीं, ठंड से मेरे दांत कटकट कर रहे हैं, कटकट। अब सुदामा जी ने एक एक करके सारे चने खा लिए, और तभी कहते हैं कि ये कारण था कि सुदामा जी जो है वो गरीब थे। और हमें कहानी पता है कि जब सुदामा जी कृष्ण से मिलने गए तो वो क्या लेकर गए थे? पोटली में कच्चे पोहे। और जब उन्होंने कृष्ण जी को कच्चे पोहे दिए और जब वो लौटे तो उनका जो घर संसार है वो बदल चुका था। उनका घर जो है वो एक महल बन चुका था। तो जब सुदामा जी ने देना सीखा वो अमीर हो गए, राइट। तो ये है अनाहत चक्र के लेसन्स। फिर हम आते हैं पांचवा चक्र, विशुद्ध चक्र, राइट। ये चक्र है कम्युनिकेशन का, बात करने का। आज हम अपनी बात किसी को समझा नहीं पाते या किसी को समझ नहीं पाते, राइट। जब हम समझा नहीं पाते या हम समझ नहीं पाते, हमें बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, हमें बहुत ही इरिटेशन होता है, राइट। और इससे ये चक्र ब्लॉक हो जाता है। इसी चक्र के ब्लॉक से थायराइड होता है, गले की तकलीफें होती हैं। और इसके जितने भी सबक है वो सिखाते हैं कैसे हम अपना प्रकाश दुनिया में फैला सकें। तो इसके लिए मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आपको समझ आ रहा है जो मैं कह रही हूँ? क्योंकि आप बहुत हायर चक्र पे पहुंच चुके हैं, पांचवें चक्र पे। और ये पांचवा चक्र है गुरु का चक्र, गुरु का। So you are understanding very clear? Okay, thank you so much, thank you, good. Okay, ठीक है, फटाफट हम करेंगे मेडिटेशन छोटा सा इसके बाद। तो विशुद्ध चक्र का जब हम मेडिटेशन करते हैं या विशुद्ध चक्र के लेसन सीखते हैं, हम रियलाइज करते हैं कि हमारे पास नेचुरली एक प्रकाश होता है। हम रियलाइज करते हैं और वो प्रकाश तभी फैलता है जब हम लोगों के साथ कंपेयर नहीं करते। हम नहीं सोचते हैं ये बड़ा है, ये छोटा है। और जब हम सबको समान दृष्टि से देखते हैं और तब हम समझ पाते हैं और समझा पाते हैं। तो ये विशुद्ध चक्र के लेसन्स हैं। और फिर मैं आपको आज्ञा चक्र बताना चाहती हूँ। आज्ञा चक्र जो है वो फोरहेड पे, ये चक्र सिखाता है कि हमें हर चीज को लाइफ में एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट। पर हम तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जब चीज हमारे अनुकूल नहीं होती, हमारे अनुसार नहीं होती, हम एजिटेट हो जाते हैं, एजिटेट कि ये क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, मैंने ये सोचा था ये क्यों हुआ, मैंने ये बोला था इसने ऐसा क्यों किया। जब हम एजिटेट हो जाते हैं तो हमारा चक्र ब्लॉक हो जाता है, राइट। और जब ये चक्र ब्लॉक होता है, हम अपनी इंटेलिजेंस नहीं यूज कर पाते, इंटेलिजेंस। तो आज दुनिया में बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग बच्चे स्टबर्न हो चुके हैं, स्टबर्न। उन्हें लगता है कि मुझे पता है क्या सही है। पर जब आप स्टबर्न होते हो ना, आप ज्ञान के लिए ओपन नहीं रहते, आप नई चीज सीख नहीं पाते, आप जो पुरानी गली चीजें हैं ना उसी पे अटके होते हो। और लाइफ का नेचर है चेंज। लाइफ का नेचर है टू मेक यू रियलाइज यू आर मोर। जो सीख चुके हो वो पुराना ज्ञान, और जो सीख रहे हो वो नया ज्ञान। कंटिन्यूअसली आपकी जो चेतना है वो प्रकाशित हो रही है, राइट। कंटिन्यूअसली वो प्रकाशित हो रही है और हमें उसके लिए हर चीज को एक्सेप्ट करना है, राइट। इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, उसके बाद मेडिटेशन। एक पर्सन था, बिजनेसमैन, और उसने लाइफ लॉन्ग सीरियसली बिजनेस किया। अब उसके बच्चे बड़े हो गए। अब वो चाहते थे हमारे फादर थोड़े से आध्यात्मिक हो जाए,
जिससे उनका स्ट्रेस कम हो जाए। तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आप प्लीज एक यात्रा पे जाओ, और उन्होंने उनके साथ एक साधु को लगा दिया। तो वो साधु जो है पिताजी को बहुत सारे मंदिर लेकर गए, पर वहां भी पूरे टाइम जो है वो कमर्शियल दिमागी था उनका। अब 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, फाइनली साधु ने बच्चों को फोन किया कि भाई मैंने बहुत कोशिश की, पर आपके पिताजी के मन से कोई भी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनको कंटिन्यूअसली पैसा, बिजनेस, दुनिया, उसी में ही मन लगा हुआ है। तो बच्चों ने कहा नहीं नहीं आप प्लीज इतनी जल्दी होप मत छोड़ो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इससे स्ट्रेस्ड रहते। उन्होंने कहा चल मैं आखिरी प्रयत्न करता हूं। तो साधु जी जो है उनको वाराणसी के घाट पे ले गए। तो वहां पर क्या हुआ कि बहुत सारे जो है ना शव जल रहे थे। उसको देखते से बिजनेसमैन जोर जोर से रोने लग गया। अब साधु के मन में प्रसन्नता आई कि चलो कुछ तो हुआ। तो उसने पूछा बताइए बताइए आपको क्या बोध हुआ, क्या बोध हुआ? कहते मैंने तो अपना जीवन पूरा बर्बाद कर दिया। कहते बताइए ना आपको क्या बोध हुआ? कहते मैं क्या बिजनेस करता रहा, मुझे तो लकड़ी का बिजनेस करना चाहिए था। तो समझिए कि जो पर्सन किसी भी चीज का अर्थ नहीं समझता, वो अपने ही नजरिए से हर चीज को देखता है, राइट? तो ये है आज्ञा चक्र। और लास्ट जो क्राउन चक्र है, मैं आपको मेडिटेशन के द्वारा सिखाऊंगी। ये चक्र है टू बी इन ग्रैटिट्यूड। आज हम दुनिया को थैंक यू करना भूल जाते हैं कि ईश्वर ने हमें मौका दिया है कि मानव रूप में हम उसको पहचाने। जैसे अगर आप एक सागर देखो, सागर में बहुत सारी लहरें, राइट? जब तक लहर सोचेगी कि मैं सागर से अलग हूं, तब तक लहर के अंदर अहम होगा, लहर के अंदर भय होगा, मुझे तो आगे जाना है, मुझे तो किनारे तक जाना है। और देखो ये लहर मेरे से तेज जा रही है, ये लहर ऊंची है, ये लहर मोटी है, ये लहर मुझे धक्का दे रही है। तो जब तक आप सोचोगे आप प्रकृति से भिन्न हो, आपको भय होगा। और जब आप रियलाइज करोगे कि जब आप अपना अहम निकालोगे और जब जो लहर है वो गिरेगी, वो सागर ही बनेगी। तो जिस दिन आप रियलाइज करोगे कि आई हैव टू फॉल इन लव, आई हैव टू फॉल इन ग्रैटिट्यूड, तो क्या होगा? यू विल रियलाइज यू आर हिम। तो ग्रैटिट्यूड एक इतना पावरफुल इमोशन है जो आपको उससे कनेक्ट करता है। ओके, सो आज हम लोग सब मिलकर लेट्स डू ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन। ओके, एवरीवन क्लोज योर आईज। सब अपनी आईज बंद कीजिए, अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। देखिए कैसे आपकी सांस अंदर, नीचे, आगे जा रही है।
श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। अब अपने आसपास अपनी मन की नजरों से देखो, घर में कौन कौन है। घर में आपका स्पाउस है, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ, उसको थैंक यू बोलो। जितना वो आपकी सेवा करता है, जितना पॉसिबल है आपकी सेवा करता है। कोई भी मतभेद होता है, वो मतभेद से भी तो मैं सीखता हूं ना। आज लाइफ की हर प्रॉब्लम से मैं सीखता हूं। मैं पावरफुल होता हूं, मैं स्ट्रांग होता हूं, मैं कंपैशनेट होता हूं, मैं माफ करना सीखता हूं, मैं सल्यूशन ढूंढना शुरू करता हूं। हर दुनिया की चैलेंज मुझे खुद से ही तो अवगत कराती है। सबको थैंक यू बोलो घर में, अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को थैंक यू, थैंक यू। मुझे मौका दिया एक हस्बैंड बनने का, एक वाइफ बनने का, एक माँ बनने का, एक पिता बनने का। घर में जो लोग हैं उनको थैंक यू करो। कैसे सीखूंगी? मैं गिरूं नहीं तो अगली बार नहीं गिरना कैसे सीखूंगी? जो जीवन में भय है वो केवल उजाला ही तो मिसिंग है, और उजाला तो है, वही तो सत्य है। Completely surrender to the divine because he is what is the truth. Radhe Shyam, Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe
Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Radhe Shyam, Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. 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 Radhe Shyam, Radhe Shyam, Shyam Shyam. अपनी आंखें जो हैं स्लोली ओपन कर लो। So thank you so much. You're a wonderful audience, and thank you so much for the opportunity. Thank you so much. Over to Sampark team. Reet, over to you. Yeah, thank you, Kailash ji. Thank you, ma'am. Yes. So, good afternoon, friends. Myself, Reet Rupani, supporting director of Sampark. Friends, it's an honor to propose the vote of thanks. Thanks, Kailash ji and Shreya ma'am, for giving me this opportunity. And thank you, ma'am, for conducting such wonderful sessions. Few points I have noted down. Actually, the entire session was mesmerizing, but मैंने कुछ लिखा है वो मुझे points सब trigger हो रहे थे. जैसे आपने you guided us that we have 7 chakras and balancing of chakras is very important in our day-to-day life. The life is about moving from darkness to light. We have to apply any of the techniques to come out of darkness. Chakra Yoga is very useful technique to cure all your emotion issues. Yes. And we can work on our anxiety, fear through this technique. And we can remove our all physical and emotional health issues through all these various different techniques. And if your chakras are blocked, then the person faces all the different types of health issues. And Chakra Yoga technique is very, very useful in opening all the blocked chakras. And even ma'am showed us a wonderful video and about history. And it was really a eye-opener video, and she narrated beautiful stories by giving examples, and she wonderfully said that we have to be in harmonious relationship with our parents. That is a very, very important part of our life, to respect our parents. And she even gave beautiful examples of Ganesh ji, and all the diseases she said are in our mind. We have to connect to our inner power to remove that. So, yes. And lastly, the blissful and wonderful gratitude meditation. It was truly rejuvenating. So thank you so much, ma'am, for conducting such a wonderful session about Chakra Yoga and its importance on our entire body, mind and soul. Grateful, ma'am, for your valuable presence and guidance to our entire Sampark family and the visitors. My sincere thanks to all the Sampark members and all the visitors for attending today's session. And my extended thanks to our directors of Sampark, Shreya ma'am and Kailash ji, for conducting such beautiful training sessions, organizing for all of us. Thank you. God bless and have a wonderful Sunday. रीत, मुझे कुछ ऐड करना था क्योंकि थोड़ा सा यूनिक चीजें हुई आज. Yes. We saw that कि our attendance went to like almost 75, which is very rare. I think Yes. 1-2 बार ये से this is second time जब हमने ये इतनी attendance touch की. Secondly, मैं मतलब एडमिन का काम भी कर रहा था और नीता जी का सेशन सुन रहा था, मतलब पैरेलल काम कर रहा था. तो मैं खुद मतलब बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ. नीता जी का जो बोलने का स्तर है, जो हम नेशनल लेवल के स्पीकर्स हैं जो अध्यात्म और तत्व ज्ञान पे, जैसे कि शिवानी जी या रविशंकर जी या सद्गुरु जी, मतलब उनके आसपास कहीं मतलब उनके उदाहरण और उनके बोलने का स्तर है. मतलब मैं नीता जी को अपनी तरफ से और सारे संपर्क परिवार की तरफ से धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आप समय निकाल के आए
और हमको एनलाइटन किया। एक हमारे उसमें सेशन में ये रहता है कि हम अंत में प्रश्न उत्तर रख पाते हैं, पर आज समय काफी आगे निकल गया है, तो मैं श्रेया और आपसे कोऑर्डिनेट करके हम आपके कुछ और सेशन रखवाना चाहेंगे। जिस तरह से आपने सातों चक्रों को बहुत ही सिंप्लीफाई करके समझाया, ये रेयरली सुनने को मिलता है। गीता के 18 अध्याय को अगर आप 7 विभागों में बांटो, तो हर चक्र का जो आप मतलब बता रहे थे वो गीता के एक विभाग का ही मतलब है। तो कुछ उसी लाइन पे जा रहा था पूरा आपका सेशन। अब सुनने में बहुत आनंद आया। अगेन थैंक्स अ लॉट टू यू। इसी के साथ अगर गीता जी आप कुछ बोलना चाहेंगे तो प्लीज यू कैन गो अहेड। Yeah, thank you so much for this opportunity, and I would really love to attend and to take one more session जिसमें मेडिटेशन में करा सकूं, because I know कि मेडिटेशन पावरफुल है, तो ये मेडिटेशन घर घर में जानी चाहिए। So I'm very grateful for this opportunity. थैंक्स टू ऑल। यहीं पे हम ये सेशन को विराम करेंगे। सबको संडे अच्छा हो उसके लिए शुभकामनाएं। हैव अ गुड डे। चलिए बाय। संपर्क बनाते रहिए, बिजनेस बढ़ाते रहिए। Okay, Neeta, bye. Thank you, and we'll welcome you again in these sessions. Thank you so much. Yeah, okay, bye-bye. Thank you, madam.